Hello students, in today's lecture we will discuss application of dimensional analysis, the third application, which is conversion of one system of units to another. In previous lecture we studied the second application of dimensional analysis, which is to deduce the relation among physical quantity. In today's lecture we will discuss the third application of dimensional analysis. Yes, so conversion of one system of units to another, it is based upon the fact that the magnitude of a physical quantity, it is based upon the fact that the magnitude of a physical quantity remains the same whatever may be the system of units. It is based upon fact that the magnitude of a physical quantity remains the same whatever may be the system of units. So if we consider here u1 and u2, units are units of measurement of a physical quantity. If u1 and u2 are the units of measurement of physical quantity and physical quantity q, and n1 and n2 are the corresponding numerical values, then we say that if u1 and u2 are units of measurement of a physical quantity q and n1 and n2 are the corresponding numerical values, then we say that q is equal to n1 u1 is equal to n2 u2. This is the relation first. Now let m1 l1 t1 be the sizes of fundamental units of mass, length and time in one system. Now let m1 l1 t1 be the sizes of fundamental units of mass, length and time in one system, and m2 l2 and t2 in another system. अपन एज्यूम कर रहे हैं कि m1 l1 t1 विद द साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. कोई एक सिस्टम है, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो अपने पास m1 l1 t1 है, और कोई अनदर सिस्टम अपन कंसिडर कर रहे हैं सेकंड सिस्टम, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो m2 l2 t2 है. अपनी जो फिजिकल क्वांटिटी है q, द फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी q इज सपोज ma lb एंड tc. देन अपन लिख सकते हैं u1 को, यूनिट्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c, और u2 को लिख सकते हैं m टू द पावर a, l टू द पावर b, t2 की पावर c. अब ये जो यूनिट्स को अपन ने इस तरीके से लिखा है u1 और u2 को, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर पुट करें तो क्या होगा, q इज इक्वल टू n1, u1 का वैल्यू आपका आएगा m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c is equal to n2 m to the power a, l to the power b, t to the power c. So final relation is n2 is equal to n1 multiply m1 by m to the power a, L1 by L to the power b, and
sorry, this is L1 upon L to the power B and T1 upon T to the power C. So ये एक्चुअल डेरिवेशन है इसका, जिससे अपन फाइंड आउट करेंगे ये फॉर्मूला जो यूज आएगा किसी एक सिस्टम, वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज करने के लिए. सो अपन ने कैसे किया एक बार वापस देख लेते हैं. दैट द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर, दिस fact is based upon the magnitude of physical quantity remains the same whatever may be the system of units. So अपन ने क्या कर दिया, दो यूनिट्स कंसिडर कर ली U1 and U2 of a physical quantity Q और the corresponding numerical values are N1 and N2. Now the relation is Q equal to N1 U1 is equal to N2 U2. Now let M1 L1 T1 जो है वो साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हैं किसी एक सिस्टम में, और M2 L2 T2 जो है वो किसी अनदर सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स हैं. अगर अपनी Q फिजिकल क्वांटिटी उसका जो फॉर्मूला है उसको अपन रिप्रेजेंट करें M to the power A, L to the power B and T to the power C, तो उसको इस फॉर्म में अपन अगर सेट करें तो जो रिमेनिंग लास्ट फॉर्मूला अपने पास जो आता है वो ये आता है, रिलेशन N2 इज इक्वल टू N1 M1 ओपन N to the power A, L1 ओपन L to the power B, T1 ओपन T to the power C, जिसको अपन न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस में यूज करेंगे. Now let us take an example. Let us convert 1 joule into erg. तो अपन को 1 joule जो है वो MKS सिस्टम में है या SI सिस्टम में, उसको erg में चेंज करना है. joule इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और टोटल वर्क डन, उसको अपन को चेंज करना है erg में, मतलब MKS सिस्टम और SI सिस्टम से इसको चेंज करना है CGS सिस्टम. सो joule जो है वो आपका कौन सा यूनिट है, SI यूनिट है. SI यूनिट उसको चेंज करना है CGS यूनिट में. अर्ग जो है वो है आपका CGS यूनिट. सो फर्स्ट जो है वो आप क्या करेंगे, जो क्वांटिटी आपको जिसकी यूनिट चेंज करने के लिए दे रखी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. सो जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का SI यूनिट है जूल, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. तो डायमेंशनल फॉर्मूला इस मेथड से ही करेंगे सारे क्वेश्चन. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, डायमेंशनल फॉर्मूला अपन जानते हैं एनर्जी का क्या होता है, M1 L2 T माइनस 2. इट्स अ डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी. नाउ यहाँ से एक चीज़ अपने पास निकल के आ रही है कि जो अपन ने लिया था पहले वाले डेरिवेशन में कि Q को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ किससे, M टू द पावर A, L टू द पावर B एंड T टू द पावर C, तो इसको कंपेयर किया जाए इससे, तो A का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 1, B का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2 और C का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा -2. तो ये तीन वैल्यूज मेरे पास जो है आ गए, A की वैल्यू 1, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू -2. नाउ इसको फॉर्मूले में सेट करते हैं. उससे पहले अपन कंपैरिजन कर लेते हैं. इधर लिख दिया SI यूनिट्स जहाँ से अपन को चेंज करना है, और किस में चेंज करना है, CGS यूनिट में. सो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं SI यूनिट M1. SI यूनिट में M का जो वैल्यू होता है वो होता 1 किलोग्राम, उसको चेंज करना है CGS में. CGS में ये हो जाएगा M2 का वैल्यू जो होगा वो होगा 1 ग्राम. तो 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम. सेकंड L1 को अपन SI यूनिट में लेते हैं 1 मीटर और CGS यूनिट में लेते हैं 1 सेंटीमीटर. सो 1 मीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर. टाइम जो है वो SI यूनिट में लिया जाता है 1 सेकंड, मतलब सेकंड्स में, और CGS यूनिट में भी टाइम हमेशा लिया जाता है सेकंड में, और FPS सिस्टम में भी जो है वो टाइम जो है हमेशा लिया जाता है सेकंड में. तो टाइम कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेकंड्स में लिया जाता है. यहाँ पे N1 की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी दे रखी है, 1 जूल, और N2 की वैल्यू अपन को पता नहीं है, उसको अपन को कैलकुलेट करना है, किस में करना है, अर्ग में. तो ये क्वेश्चन करने का पूरा फॉर्मेट समझ लें आप. सबसे पहले अपन को दे रखा था लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इनटू एनर्जी अर्ग. तो सबसे पहले तो ये देखेंगे जूल जो है वो किसका यूनिट है, तो जूल जो है वो यूनिट है एनर्जी का. कौन सा यूनिट है, SI यूनिट है, जिसको चेंज करना अर्ग में, विच इज़ अ CGS यूनिट. सो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे एनर्जी का, M1 L2 T माइनस 2. उसको कंपेयर करेंगे तो A, B और C की वैल्यू अपने पास आएगी. देन कोफिशिएंट्स लिखेंगे SI यूनिट्स के और CGS यूनिट के. SI यूनिट में अपन 1 kg किलोग्राम लेते हैं, CGS यूनिट में ग्राम लेते हैं. SI यूनिट में यहाँ लेंथ को मीटर में लेते हैं, यहाँ पे लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, टाइम को यहाँ पे सेकंड में लिया जाएगा. और N1 की वैल्यू जो अपने पास है वो है 1 जूल, और
N2 उसकी वैल्यू अपन को पता नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो अपन को चाहिए कि इसमें अर्ग में चाहिए। अपने फॉर्मूला में इसको सेट करते हैं। फॉर्मूला है N2 इज इक्वल टू N1 M1 ओपन M2 की पावर A, L1 ओपन L2 की पावर B और T1 ओपन T2 की पावर C। सो N2 इज इक्वल, N1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। M1 की वैल्यू हो जाएगी 1000 ग्राम ओपन M2 की वैल्यू हो जाएगी 1 ग्राम। इसलिए अपन ने इसको सेम यूनिट्स में लिया था ताकि अपन जो है ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर सके। अब A का वैल्यू मेरे पास है 1। इसी तरीके से L1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 100 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। इसकी यूनिट में इसका वैल्यू जो B का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 2, T1 की वैल्यू हो जाएगी 1 सेकंड, T2 की वैल्यू भी हो जाएगी 1 सेकंड और इसका जो पावर है वो हो जाएगा -2। N2 इज इक्वल टू 1 इंटू ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो 1 ओपन 1, तो 1 का पावर -2, तो ये तो फैक्टर हो गया 1, ये भी 1 है आपका। नाउ दिस यहाँ पे बचा ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 1000 ओपन 1 इज इक्वल टू 1000, तो 1000 की पावर 1, तो 1000 हो गया मल्टी 100, तो 100 इज इक्वल टू 10⁻² की पावर 2, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻4। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे N2 तो ये 10⁻3 टू 10⁻4 इज इक्वल टू 10⁻7। अब जो ये यूनिट आपका किस में हो जाएगा, अर्ग में। सो द फाइनल रिलेशन कम्स आउट टू बी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। This is the relation and this is the example. Let us convert 1 joule into erg. 1 joule is equal to 10⁻7 erg. This is the proper method to convert one system of unit to another. एक क्वेश्चन जो है वो आपको मैंने करके समझा दिया है। इसके बेसिस पे अपन किसी भी सिस्टम में किसी वैल्यू को अनदर किसी सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। आइदर इट इज़ MKS टू CGS, MKS टू FPS, CGS टू MKS, किसी भी सिस्टम में अपन उसको चेंज कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।